Hi everybody, welcome to part 5 of this video on the chapter of indefinite integration. Question number 83rd of this chapter is integration of e raised to x into 1 upon x minus 1 upon x square. Students, this question is of the form e raised to x into f of x plus f dash of x. So guys, if we substitute 1 upon x as f of x, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा it will be minus 1 upon x square and that can be written as f dash of x. इसका मतलब स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें 1 upon x के जगह f of x लिखना है and in place of minus 1 upon x square we need to write f dash of x. Now students, whenever you have an integration of the form e raised to x into f of x plus f dash of x, तो ऐसे क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर होता है e raised to x into f of x plus c. Now students, in this question f of x has been taken as 1 upon x, इसीलिए हमारा फाइनल आंसर होगा e raised to x into 1 upon x plus c. So with this we have completed this question. Let's move ahead to the next slide. Yes students, the next question of this chapter is integration of e raised to x into log of x plus 1 upon x square. Students, to solve this question, we will have to add and subtract 1 upon x in the first step. So the equation becomes e raised to x into, inside the bracket, log of x minus 1 upon x plus 1 upon x plus 1 upon x square. Students, हमने फर्स्ट स्टेप में 1 अपॉन x को ऐड एंड सब्सट्रैक्ट किया है एंड इसका रीज़न बहुत सिंपल है. गाइस, अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे जो फर्स्ट फंक्शन है log ऑफ x माइनस 1 अपॉन x, उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन में अवेलेबल है. सो गाइस, इफ़ वी सब्सटीट्यूट log ऑफ x माइनस 1 अपॉन x एज f ऑफ x, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर एंड दैट कैन बी रिटन एज f डैश ऑफ x. गाइस, आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो दैट log ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x एंड गाइस माइनस 1 अपॉन x का डेरिवेटिव होता है प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर. So students, this question is again of the form e raised to x into f of x plus f dash of x. Therefore guys, the answer will be e raised to x into f of x plus c. अब guys, यहाँ पे हमने f of x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है as log of x minus 1 upon x. So therefore our final answer will be e raised to x into log of x minus 1 upon x plus c. So with this we have completed this question. Let's move ahead to the next slide. Yes students, the 85th question of this chapter is integration of e raised to x into x upon x plus 1 whole square. Students, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए we will add and subtract 1 in the numerator. So the equation becomes e raised to x into x plus 1 minus 1 divided by x plus 1 whole square. इसके बाद स्टूडेंट्स विल सेपरेट द डिनोमिनेटर एंड द इक्वेशन विल बिकम e raised to x into, inside the bracket, x plus 1 divided by x plus 1 whole square minus 1 upon x plus 1 whole square. अब गैस, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है उसमें एक x plus 1 कैंसिल हो जाएगा एंड आफ्टर दैट यू विल ऑब्टेन द इक्वेशन एज e raised to x into, inside the bracket, 1 upon x plus 1 minus 1 upon x plus 1 whole square. अब स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में अगर हम 1 अपॉन एक्स प्लस 1 को f ऑफ x सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो उसका जो डेरिवेटिव है माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, वो f डैश x हो जाएगा. सो गैस, दिस क्वेश्चन अगेन बिकम्स ऑफ द फॉर्म e रेज टू x इंटू f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x. इसीलिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का भी आंसर आएगा e रेज टू x इंटू f ऑफ x प्लस c. अब गैस, इस क्वेश्चन में हमने 1 अपॉन एक्स प्लस 1 को f ऑफ x सब्स्टिट्यूट किया था एंड देयरफॉर आवर फाइनल आंसर इज e रेज टू x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस c. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन एज वेल. लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड. Yes students, the 86th question of this chapter is integration of e raised to x into 1 minus sin x divided by 1 minus cos x. स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो न्यूमरेटर में sin x है वी विल राइट इट एज 2 sin x by 2 cos x by 2 एंड गाइस, डिनोमिनेटर में जो 1 माइनस cos x है वी विल राइट इट एज 2 sin square x by 2. गाइस, हम यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं. sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा
एंड गाइस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दो फॉर्मूलाज यूज करने के बाद इक्वेशन बिकम्स e रेज टू x इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। इसके बाद स्टूडेंट्स विल सेपरेट द डिनोमिनेटर एंड यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर x बाई 2 विल बिकम कोसेक स्क्वायर x बाई 2 एंड गाइस सेकेंड टर्म में 1 साइन x बाई 2 विल कैंसल आउट एंड cos x by 2 upon sin x by 2 will become cot x by 2. So guys, the equation becomes e raised to x into inside the bracket half cosec square x by 2 minus cot of x by 2. इसके बाद स्टूडेंट्स हम ब्रैकेट में से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे एंड इट विल बी रिटन आउटसाइड एंड गाइस आफ्टर दैट वी विल सब्सटीट्यूट cot of x by 2 as f of x. So students, if you substitute cot of x by 2 as f of x, तो इसका डेरिवेटिव होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू हाफ एंड गाइस ये टर्म इस क्वेश्चन में अवेलेबल है। सो स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन ऑल्सो बिकम्स ऑफ द फॉर्म ई रेज टू एक्स इंटू इनसाइड द ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। सो गाइस इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब गाइस माइनस साइन बाहर अवेलेबल है, देयरफॉर योर फाइनल आंसर विल बी माइनस ई रेज टू एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स बाई 2 प्लस सी। गाइस यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में कॉट ऑफ एक्स बाई 2 को एफ ऑफ एक्स सब्सटीट्यूट किया था एंड गाइस उसका जो डेरिवेटिव है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू हाफ वो एफ डैश एक्स हो जाएगा। अब गाइस बिकॉज फाइनल आंसर इज ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, इसीलिए हमारा यहाँ पे आंसर आता है ई रेज टू एक्स कॉट ऑफ एक्स बाई 2 प्लस सी। गाइस बाहर माइनस साइन भी है, उसको ध्यान में रखना। So with this we have completed this question. Let's move ahead to the next slide. Yes students, the 87th question of this chapter is integration of sin of log x plus cos of log x. Guys, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए we will substitute log of x to the base e as equal to t. Guys, once we substitute this, we'll get the value of x as equal to e raised to t. स्टूडेंट्स हमें पता है दैट लॉग का जो बेस होता है व्हेन इट गोज टूवर्ड्स राइट, तो राइट साइड में जो टर्म है इट गोज इनटू द पावर। देयरफॉर गाइस यू गेट द वैल्यू ऑफ x एज इक्वल टू ई रेज टू t. इसके बाद स्टूडेंट्स विल टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स एंड विद दिस विल गेट द इक्वेशन एज dx इज इक्वल टू ई रेज टू t इंटू dt. इसका मतलब स्टूडेंट्स हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें हम log ऑफ x के जगह पे t सब्सटीट्यूट करेंगे and guys in place of dx we will write e raised to t into dt. So guys after substitution the equation becomes integration of e raised to t into inside the bracket sin of t plus cos of t dt. अब guys this question is again of the form e raised to t into inside the bracket f of t plus f dash of t. Guys इस क्वेश्चन में हमें sin of t के जगह लिखना है f of t एंड गाइस उसका जो डेरिवेटिव है cos ऑफ t उसके जगह हम लिख देंगे f डैश ऑफ t. सो गाइस इस क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा e रेज टू t इंटू एफ ऑफ t प्लस c. हम f ऑफ t के जगह sin t लिख देंगे एंड देयरफॉर आवर फाइनल आंसर इज e रेज टू t sin ऑफ t प्लस c. अब गाइस sin ऑफ t में जो t है उसके जगह हम बैक सब्सटीट्यूट कर देंगे एज log ऑफ x एंड गाइस e रेज टू t के जगह हम बैक सब्सटीट्यूट कर देंगे एज x. So our answer will become x into sin of log of x plus c. So with this we have completed this question as well. Let's move ahead to the next slide. Yes students, question number 88 of this chapter is integration of log of x divided by 1 plus log of x whole square dx. Students इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर से हम सब्सटीट्यूट कर देंगे log of x to the base e as equal to t. Therefore students x will again become equal to e raised to t and now when we take derivative on both sides dx will become equal to e raised to t dt. So guys हमें ओरिजिनल क्वेश्चन में log of x के जगह t सब्सटीट्यूट करना है and in place of dx we will write e raised to t into dt. So guys the question becomes integration of t into e raised to t divided by t plus 1 whole square dt. अब guys this question has become of the form which was seen in question number 85. guys यहाँ हम न्यूमरेटर में +1 and -1 कर देंगे
एंड उसके बाद व्हेन वी सेपरेट द डिनोमिनेटर विल गेट द इक्वेशन एज इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू टी इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1/t+1 माइनस 1/t+1 होल स्क्वायर। अब गैस काफ़ी ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो 1/t+1 है उसको हम f ऑफ t सब्सटीट्यूट कर देंगे, क्योंकि उसका जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा -1/t+1 होल स्क्वायर, ताकि हम उसको f' लिख सके। सो गैस दिस क्वेश्चन इज अगेन ऑफ द फॉर्म e रेज टू टी इंटू f ऑफ t प्लस f' ऑफ t, एंड देयरफॉर इसका आंसर हो जाएगा e रेज टू टी f ऑफ t प्लस c। गैस f ऑफ t की वैल्यू है 1/t+1 and therefore our answer is e raised to t into 1/t+1 plus c। इसके बाद स्टूडेंट्स हम t के जगह लिख देंगे log of x to the base e, and guys in place of e raised to t will back substitute as x, so our final answer will be x upon log of x plus 1 plus c। So with this we have completed question number 88. Let's move ahead to the next slide. Yes students, to understand the next question, we'll have to look at the proof of a beautiful formula. So we need to find out integration of e raised to ax into sin bx. So guys, let's call this answer as I. Now students, in the first step, we'll use integration by parts, in which we'll take e raised to ax as first function and sin of bx as second function. अब guys हमें पता है that after doing integration by parts, we get the equation as first function remains same into integration of second function minus inside the integration derivative of first function into again integration of second function. अब guys यहाँ पे sin of bx का integration हो जाएगा minus cos of bx upon b, and people e raised to ax का derivative हो जाएगा e raised to ax into a. So after doing this substitution we'll get the equation as minus e raised to ax into cos of bx upon b plus a upon b times integration of e raised to ax cos of bx dx. अब गैस यहाँ पे जो इंटीग्रेशन ऑफ e raised to ax cos of bx आया है उसको हम फिर से सॉल्व करेंगे बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इन विच विल अगेन टेक e raised to ax as first function and cos of bx as second function. So guys, by doing integration by parts one more time, we'll have to take integration of cos of bx, जिसका आंसर आ जाएगा sin of bx upon b, and guys again e raised to ax का डेरिवेटिव होगा e raised to ax into a. So after doing this we'll get an integration of e raised to ax into sin of bx. guys यही हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है, एंड यहाँ पे आप बैक सब्स्टिट्यूट कर सकते हो as I. So after doing all of this we'll get the equation as minus e raised to ax cos of bx upon b plus a upon b times inside the bracket e raised to ax sin of bx upon b minus a upon b times I. अब गैस आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि राइट साइड में हमने e raised to ax sin bx के इंटीग्रेशन को फिर से I लिख दिया है. Now guys, after rearranging you'll get the answer of I as equal to e raised to ax divided by a square plus b square into inside the bracket a sin bx minus b cos bx. So students, आप इस फॉर्मूला को मेमोराइज कर सकते हो. इंटीग्रेशन ऑफ e raised to ax sin bx dx is equal to e raised to ax upon a square plus b square into inside the bracket a sin bx minus b cos bx. So with this we have completed this proof. Now let's move ahead to the next question. Yes students, question number 89 of this chapter is integration of e raised to 2x sin 3x dx. So guys, this question is of the form integration of e raised to ax sin bx dx. Guys, हमने अभी जस्ट देखा था कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर आता है e raised to ax upon a square plus b square into inside the bracket a sin bx minus b cos bx. So guys, इस क्वेश्चन में a की वैल्यू इज 2 एंड b की वैल्यू इज 3, एंड देयरफॉर योर आंसर इज e raised to 2x divided by 2 square plus 3 square into inside the bracket 2 sin 3x minus 3 cos 3x. guys, हमने बस फॉर्मूला में a के जगह 2 सब्स्टिट्यूट किया है, एंड इन प्लेस ऑफ b we have substituted 3. So after doing basic math, your final answer will be
e raised to 2x upon 13 into inside the bracket 2 sin 3x minus 3 cos 3x. So with this we have completed this question. Let's move ahead to the next slide. Yes students, question number 90 of this chapter is integration of sine of log of x dx. To solve this question, we will substitute log of x to the base e as equal to t, and therefore the value of x becomes equal to e raised to t. इसके बाद students will take derivative on both sides and will obtain dx as equal to e raised to t dt. So guys, हमें original question में log of x के जगह t substitute करना है and in place of dx we'll write e raised to t dt. So guys, हमारा question हो जाएगा integration of sine of t e raised to t dt. Now students, this question has again become of the form integration of e raised to at sine of bt dt. Guys, ऐसे क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आता है e raised to at डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू इनसाइड द ब्रैकेट a sin bt माइनस b cos bt. Guys, यहाँ पे इस क्वेश्चन में a and b दोनों की वैल्यू इज 1 and once you substitute this you'll get the answer as e raised to t divided by 2 into inside the bracket sin of t minus cos of t. अब गैस हम t के जगह बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे as log of x and guys in place of e raised to t we'll write x. So our final answer will be x by 2 into inside the bracket sin of log of x minus cos of log of x. So with this we have completed this question as well. एंड यहाँ पे भी हमने सेम फॉर्मूला यूज़ किया था इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू ax साइन bx dx इज इक्वल टू e रेज टू ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू इनसाइड द ब्रैकेट a साइन bx माइनस b cos bx. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड. यस स्टूडेंट्स, टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट क्वेश्चन विल हैव टू लुक एट अ सिमिलर फॉर्मूला जिसका प्रूफ फिर से आता है बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. Guys, this formula is integration of e raised to ax into cos of bx dx is equal to e raised to ax divided by a square plus b square into inside the bracket b sin bx plus a cos bx. Guys, ये बहुत ही सिमिलर फॉर्मूला है. इसमें बस हमारे को ये ध्यान में रखना है दैट इनसाइड द ब्रैकेट देयर इज प्लस साइन इन बिटवीन. एंड गाइस, जो लास्ट फॉर्मूला हमने किया था उसमें साइन एंड कॉस का जो कोइफिशिएंट है वो रिवर्स हो गया है. So guys, your formula is e raised to ax upon a square plus b square into inside the bracket b sin bx plus a cos bx. So let's look at the next slide in which we'll use this formula. Yes students, the 91st question of this chapter is integration of e raised to sine inverse of x dx. Guys, we'll start this question by substituting sine inverse of x as equal to t. And therefore the value of x will become equal to sin t. Now guys, we'll take derivative on both sides and through this we'll get the equation as dx is equal to cos t into dt. अब guys, हमें ओरिजिनल क्वेश्चन में साइन इनवर्स ऑफ x के जगह t सब्स्टिट्यूट करना है एंड इन प्लेस ऑफ dx we'll write cos t into dt. So guys, our question becomes integration of e raised to t cos of t dt. Now students, this question has again become of the form integration of e raised to at cos of bt dt. अब guys, ऐसे क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आता है e raised to at अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू इनसाइड द ब्रैकेट b sin bt प्लस a cos bt. Guys, इस क्वेश्चन में a and b दोनों की वैल्यू इज 1 एंड वंस वी सब्स्टिट्यूट दिस विल गेट द आंसर एज e raised to t अपॉन 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट साइन ऑफ टी प्लस कॉस ऑफ टी. कैसे यहाँ पे हम कॉस ऑफ टी के जगह फिर से लिख देंगे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी एंड गैस आफ्टर दैट विल सब्स्टिट्यूट साइन ऑफ टी एज इक्वल टू एक्स एंड गैस इन प्लेस ऑफ टी विल राइट साइन इनवर्स ऑफ एक्स. सो गैस हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा e रेज टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. गैस यहाँ पे हमने cos ऑफ t के जगह लिखा था अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी एंड गैस साइन t की वैल्यू इज x. इसीलिए गैस सेकेंड टर्म आता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो गैस विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला यूज़ किया है इंटीग्रेशन ऑफ
e raised to at cos of bt dt is equal to e raised to at upon a square plus b square into inside the bracket b sin bt plus a cos bt. Now let's move ahead to the next slide. Yes students, question number 92 is based on the concept of partial fraction. Guys, the question is integration of 2x minus 1 divided by x minus 1 into x plus 2 into x minus 3. So students, to solve this question, we'll have to write this question in the form of a upon first term plus b upon second term plus c upon third term. इसका मतलब स्टूडेंट्स विल राइट दिस क्वेश्चन एज a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3. अब गाइस यहाँ पे a, b एंड c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक बहुत ही ईजी शॉर्टकट है. लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू. गाइस व्हेन वी राइट a अपॉन x माइनस 1 तो a का डिनोमिनेटर इज x माइनस 1. तो गाइस आपको ये डिनोमिनेटर को जीरो इमेजिन करना है एंड देयरफॉर x का वैल्यू विल बिकम इक्वल टू 1. अब गाइस ये जो x इज इक्वल टू 1 है ये आपको ओरिजिनल क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करना है. सो गाइस न्यूमरेटर विल बिकम 2 इंटू 1 माइनस 1 विच इज 1 एंड गाइस डिनोमिनेटर में जो x प्लस 2 है इट विल बिकम 1 प्लस 2 विच इज 3 एंड गाइस जो डिनोमिनेटर में x माइनस 3 है इट विल बिकम 1 माइनस 3 विच इज माइनस 2. इसीलिए स्टूडेंट्स आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो कि x माइनस 1 के न्यूमरेटर में 1 लिखा है एंड डिनोमिनेटर में हमने 3 इंटू माइनस 2 लिखा है. Now guys, let me also explain to you how to find the value of b and c. We have to use the same shortcut. Guys, b का denominator is x plus 2. तो आपको जो b का denominator है उसको 0 imagine करना है. And now guys, when you imagine x plus 2 as equal to 0, the value of x becomes equal to minus 2. अब guys ये जो x equal to minus 2 है ये हमें फिर से ओरिजिनल क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करना है. So guys, numerator will become 2 into minus 2 minus 1 which is equal to minus 5. Guys, denominator में x minus 1 will become minus 2 minus 1 which is minus 3 and guys x minus 3 will become minus 2 minus 3 which is minus 5. इसीलिए स्टूडेंट्स x plus 2 के जो न्यूमरेटर है वहाँ पे हमने minus 5 लिखा है and guys डिनोमिनेटर में we have written minus 3 into minus 5. Now guys, let's check the value of c as well. Guys, c का जो डिनोमिनेटर है इट इज x माइनस 3. आपको इसको भी इक्वल टू 0 इमेजिन करना है एंड इससे गैस आपको x की वैल्यू मिल जाएगी एज इक्वल टू 3. अब गैस फिर से हमें x इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करना है इन द ओरिजिनल क्वेश्चन. गैस व्हेन यू सब्स्टिट्यूट दैट यू विल गेट द न्यूमरेटर एज 2 इंटू 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 5. डिनोमिनेटर में x माइनस 1 विल बिकम 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2 एंड गैस x प्लस 2 विल बिकम 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5. इसीलिए गैस x माइनस 3 के न्यूमरेटर में हमने 5 लिखा है एंड इन द डिनोमिनेटर वी हैव रिटन 2 इंटू 5. सो गैस इससे इजीली हमें a, b एंड c की वैल्यू मिल जाती है एंड वंस वी गेट दिस वैल्यूज उसके बाद इंटीग्रेशन बहुत आसान है. गैस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x माइनस 1. सिमिलरली 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x प्लस 2 एंड फाइनली 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ x माइनस 3. सो गैस योर फाइनल आंसर विल बी माइनस 1 अपॉन 6 log ऑफ x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 3 log ऑफ x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 2 log ऑफ x माइनस 3. तो गैस मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, व्हेन यू आर डूइंग पार्शियल फ्रैक्शन आपको a, b और c की अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उनका जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल टू 0 इमेजिन करो एंड उससे आपका जो x का आंसर आता है उसको आप ओरिजिनल क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दो. इससे डायरेक्टली आपको a, b एंड c की वैल्यू मिल जाएगी. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड. यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 93 ऑफ दिस चैप्टर इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2. गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए विल सब्स्टिट्यूट एक्स स्क्वायर एज इक्वल टू टी एंड ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज उसका जो डेरिवेटिव है 2x dx वो न्यूमरेटर में अवेलेबल है. सो स्टूडेंट्स इन प्लेस ऑफ 2x dx विल राइट dt एंड इन डिनोमिनेटर इन प्लेस ऑफ एक्स स्क्वायर विल राइट t. गैस इससे क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t प्लस 1 इंटू टी प्लस 2.
Now students will again use partial fraction and will write this question as a upon t plus 1 plus b upon t plus 2. Guys, यहाँ a and b की वैल्यू निकालने के लिए विल यूज द सेम शॉर्टकट एज एक्सप्लेन्ड इन द लास्ट क्वेश्चन. एंड गाइस, इससे आपको a की वैल्यू मिल जाएगी एज इक्वल टू 1 एंड b की वैल्यू मिल जाएगी एज -1. सो गाइस, द क्वेश्चन बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी प्लस 2. अब गाइस, 1 अपॉन टी प्लस 1 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ टी प्लस 1 एंड गाइस 1 अपॉन टी प्लस 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ टी प्लस 2. इसके बाद स्टूडेंट्स हम t को बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे एज एक्स स्क्वायर एंड इससे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस c. So with this we have completed this question. Let's move ahead to the next slide. Yes students, so this is the last question in part 5 of indefinite integration. Guys, the question is integration of 1 upon sin x minus sin 2x. Guys, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हम sin 2x का फॉर्मूला यूज करेंगे as 2 sin x into cos x. इसके बाद स्टूडेंट्स will take sin x as common in the denominator and the equation becomes integration of 1 upon sin x into inside the bracket 1 minus 2 cos x. After this, we'll multiply numerator and denominator by sin x and the equation becomes integration of sin x dx upon sin square x into 1 minus 2 cos x. इसके बाद स्टूडेंट्स विल राइट sin square x as 1 minus cos square x एंड गाइस ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम cos x इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट कर सकें. गाइस, हमने यहाँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में sin x से मल्टीप्लाई किया था ताकि आप डिनोमिनेटर में sin square x लिख सको एंड गाइस यू कैन राइट sin square x एज 1 minus cos square x. गाइस, ऐसा करने का एक ही रीज़न है, वी वांट टू सब्स्टिट्यूट cos x एज इक्वल टू t बिकॉज उसका जो डेरिवेटिव है वो न्यूमरेटर में अवेलेबल है. सो गाइस, न्यूमरेटर में जो sin x इंटू डी एक्स है उसके जगह हम माइनस डी टी लिख देंगे एंड गाइस डिनोमिनेटर विल बिकम 1 minus t square into 1 minus 2t. इसके बाद स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में जो 1 minus t square है वहाँ पे आप a square minus b square का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो एंड देयरफॉर डिनोमिनेटर विल बिकम 1 minus t into 1 plus t into 1 minus 2t. लेकिन गाइस, क्योंकि न्यूमरेटर में माइनस साइन था इसीलिए डिनोमिनेटर का जो फर्स्ट ब्रैकेट है इट गेट्स रिवर्स्ड और वो t-1 हो जाता है. इसके बाद स्टूडेंट्स वी आर अगेन गोइंग टू यूज पार्शियल फ्रैक्शन एंड विल राइट दिस क्वेश्चन एज a अपॉन t-1 प्लस b अपॉन 1 प्लस t प्लस c अपॉन 1 माइनस 2t. अब गाइस, यहाँ पे a, b एंड c की वैल्यू निकालने के लिए विल यूज द सेम शॉर्टकट एज एक्सप्लेन्ड इन द लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन. गाइस, यहाँ पे a का जो डिनोमिनेटर है इट इज t-1, तो आप इसको इक्वल टू 0 इमेजिन करो एंड व्हेन यू इमेजिन t-1 एज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ t कम्स आउट एज इक्वल टू 1. अब गाइस, आपको ओरिजिनल क्वेश्चन में t इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करना है और इससे आपको a की वैल्यू मिल जाएगी. तो गाइस, आप यहाँ देख सकते हो कि ओरिजिनल क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में जो सेकेंड ब्रैकेट है उसमें जब आप t इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो इट विल बिकम 1 प्लस 1 विच इज़ 2 एंड गाइस जो थर्ड ब्रैकेट है उसमें जब आप t इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो इट विल बिकम 1 माइनस 2 इंटू 1 विच इज़ -1. इसीलिए गाइस आप यहाँ देख सकते हो कि t-1 के साथ डिनोमिनेटर में सेकेंड ब्रैकेट में 2 लिखा है एंड थर्ड ब्रैकेट में -1. उसके बाद स्टूडेंट्स जब आपको b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो b का डिनोमिनेटर इज t+1, तो आप t+1 इक्वल टू 0 इमेजिन करो एंड इससे आपको t का आंसर आ जाएगा एज -1. नाउ गाइस, ओरिजिनल क्वेश्चन में आपको t इज इक्वल टू -1 सब्स्टिट्यूट करना है. तो गाइस, ओरिजिनल क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में जो फर्स्ट ब्रैकेट है इट इज t-1, उसमें जब आप t इज इक्वल टू -1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो इट विल बिकम -1 विच इज इक्वल टू -2. और गाइस जो थर्ड ब्रैकेट है इट इज़ 1 माइनस 2t और जब आप उसके अंदर t इज इक्वल टू -1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो इट विल बिकम 1 माइनस 2 इंटू -1 एंड दिस इज इक्वल टू 3. इसीलिए स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में जो t+1 है वहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में -2 लिखा है एंड थर्ड ब्रैकेट में 3 लिखा है. सिमिलरली गाइस जब आपको c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो c का डिनोमिनेटर इज 1 माइनस 2t, आप उसको इक्वल टू 0 इमेजिन करो. गाइस इससे आपको t का आंसर आ जाएगा एज इक्वल टू हाफ.
अब गाइस हमें ओरिजिनल क्वेश्चन में t इज इक्वल टू हाफ सब्सटीट्यूट करना है। इससे डिनोमिनेटर में जो फर्स्ट ब्रैकेट है इट विल बिकम हाफ माइनस वन विच इज माइनस हाफ, एंड गाइस सेकेंड ब्रैकेट विल बिकम हाफ प्लस वन विच इज 3/2। इसीलिए स्टूडेंट्स 1 माइनस 2t के साथ फर्स्ट ब्रैकेट में हमने माइनस हाफ लिखा है एंड सेकेंड ब्रैकेट में 3/2। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटीग्रेशन लेना बहुत आसान है। 1/t-1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ t-1। उसके बाद स्टूडेंट्स 1/t+1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ t+1, एंड फाइनली 1/1 - 2t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ 1 - 2t डिवाइडेड बाय -2। उसके बाद स्टूडेंट्स बेसिक कैलकुलेशन करने के बाद आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा -12 log ऑफ 1 - t minus 1/6 times log of 1 plus t plus 2/3 times log of 1 minus 2t plus c। अब गाइस हम t के जगह बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे एज cos x, एंड हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा -12 log of 1 minus cos x minus 1/6 log of 1 plus cos x plus 2/3 log of 1 minus 2 cos x plus c। So with this we have completed this question, and I hope you had a lot of fun in this video as well. Till then, stay happy and keep smiling. I will see you in the next video.